Hi everyone, welcome back to Super Kalam. Now that we know only few days are left for prelims 2024, and not just prelims 2024, the next session, the next level, the next phase for 2025 students is also going to start, right? So this particular class is going to help you a lot. We all know that prelims is all about the focus on current affairs, current awareness, and with a blend of the static. Prelims में 75% questions are current affairs, but those 75 questions percentage of questions are also blended with the static portion. For example, if I'll just open up Super Kalam and let's say we are reading today's daily news analysis. Okay, now here the news was Telangana's firm first steps after formation. Now when we talk about states, their formation, merging with other states, etc., yes, it is a current particular topic, right? But it is also related to our constitution, it is also related to our static concept in polity. Similarly, here over here you will see that ICMR is trying to provide for oral formulation of hydroxyurea to treat sickle cell disease. It is a current affair related news. But also we can see that sickle cell disease ये static में भी आ जाता है science and technology, right? So these are the important aspects that you must remember whenever we are studying current affairs. Static is automatically a part of it. And here we are studying a blend of static and current affairs today. So if you have your geography registered, I would request all of you to make notes simultaneously with me in the class, running notes. I will provide you the PDF on the Telegram group, but running notes are also important. Okay, what are we going to study today? Mapping session hai ye. It's a very nice mapping session. Maps are forming up, somewhere around 20 to 24 marks in prelims examination. So we are going to map volcanoes, seas, oceans, rivers, important lakes, straits, gulfs, and also we will start with the previous year questions first. So always remember, whenever you are starting your preparation or you are studying a topic, start with the PYQs. Understand the requirement of UPSC from that particular topic. Example, we are studying, let's say, ocean, seas and rivers. If we go to the PYQs, you will see how the questions are being asked. This is the latest pattern change based question which was asked by UPSC. These are the kind of questions they are asking you to match the sea with the bordering country. They are asking you ki which particular area or country is not opening into a particular sea or is not sharing borders with a particular sea. These kind of questions, that means borders के बारे में question पूछे जाते हैं. They will ask you question on locations, they will ask you question on climate of that particular area. These are the target topics of UPSC. So PYQs will give you a hint into the mind of the UPSC examiner. यही फायदा होता है PYQ का और इसी को समझना आपके लिए जरूरी है. There are students who ratify, who cram PYQs. You don't have to do that. You have to understand each and every option. हर option के ऊपर notes बनाओ. ये नहीं कि इस question का correct answer याद कर लिया हो गया. नहीं, this is not the right approach. You look at the question, make notes on each and every option, then understand the answer of the question, understand the explanation of the question, revise, make short notes, and then move ahead. And obviously, up to now, you have Super Kalam. So practice different questions with Super Kalam as well, right? तो अब यहाँ पर जब हम देखेंगे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू कैन सी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से इस क्वेश्चन की तरफ देखना है सभी को, ठीक है? When we talk about this question, they have given us two things, sea and bordering country. Okay, now you have to consider the following pairs and you have to identify which of the pairs given above is or are correctly matched. Okay, तो अब जल्दी से ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है. एड्रियाटिक सी, दे आर राइटिंग अल्बेनिया. देन ब्लैक सी, दे आर राइटिंग क्रोएशिया. कैस्पियन सी, दे आर राइटिंग काजाकिस्तान. मेडिटेरेनियन सी, दे आर राइटिंग मोरक्को. रेड सी, सीरिया. सो इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी विल सी, देखो मैं आपको ना ट्रिक्स बता रही हूँ तो ट्रिक्स लिखते भी जाना, ठीक है? प्लीज राइट डाउन द ट्रिक्स ऑल्सो. when we talk about the tricks to remember, always remember that Adriatic Sea जो है, it is a body of water which separates the Italian peninsula from the Balkan peninsula. We will study about the Adriatic Sea also, don't worry.
ये देखो एड्रियाटिक सी के बारे में भी पढ़ेंगे. दिस इज द इटालियन पेनिनसुला, दिस इज द बाल्कन पेनिनसुला, इट इज डिवाइडिंग बोथ, है ना. तो वी विल स्टडी दिस इन डिटेल, डोंट वरी. Now, the countries which, or you can say, with the coastal regions on the Adriatic Sea, what are those countries? We have Albania, ठीक है, we have Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Slovenia and Italy. These are the countries. अब यहाँ पर अगर हम इसके निमोनिक बनाने जाएं तो वी कैन मेक गुड निमोनिक्स. Aunt Mary has butter. Cuz means because, short हो गया. Cuz she likes to eat ice. ओके. तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो. दिस इज लाइक, मतलब आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल हाउ यू कैन क्रिएट निमोनिक्स व्हेन इट कम्स टू रिमेंबरिंग द नेशंस बॉर्डरिंग द सीज, इंपॉर्टेंट सीज और मेजर सीज. तो दिस kind of mnemonic you can make. I remember somewhere, I don't remember where, but somewhere I studied or read this mnemonic. uh, Incredibly slimy cockroach bit my aunt. ये एड्रियाटिक सी का ही था. आई फॉर इनक्रेडिबली, एस फॉर स्लाइमी, सी फॉर कॉकरोच, बिट माई आंट. ओके. तो इस तरीके से भी मैंने निमोनिक कई सारे ऑनलाइन सोर्सेज पे देखे हैं, पढ़े हैं. तो आप अपने कुछ भी बना सकते हो. जैसे मैंने अभी आंट मेरी का बनाया था, आप बना सकते हो. इंस्टेंट बनाया था मैंने आंट मेरी का, राइट. सो हियर एड्रियाटिक सी का हमने पढ़ लिया निमोनिक, ठीक है. दैट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट, अल्बेनिया इज करेक्ट. Now first is correct, we can eliminate C option, right? Then Black Sea. When we talk about Black Sea, it is an inland sea. देखो Black Sea के ऊपर भी मैंने एक notes बनाया. We will study these notes in detail. So when we talk about Black Sea, it is bordered by Ukraine, Russia, Georgia, Turkey, Bulgaria, Romania. So here Croatia is wrong. Croatia तो नहीं आएगा. That means 2 गलत हो गया. A हट जाएगा, D हट गया. Automatically we have arrived at the correct answer, which is B. ओके. तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड और अप्लाइड वेन एवर यू आर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो आपका वहीं, आपको नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है. योर आंसर वुड बी कंप्लीट. नाउ सिमिलरली इफ वी लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following countries of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? Even I have covered in this class Mediterranean Sea also. We will study all this. मैप लेकर बैठना अभी क्लास में आप लोग, ठीक है. सब कुछ हमको पढ़ना है आज मैप के साथ. So when we talk about this question, you have 1 minute time to answer the question. जल्दी से बताओ. 30 seconds left. All right. So when we look at this particular question, the correct answer is Jordan. ठीक है. करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉर्डन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ व्हेन वी हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड ऑल्सो. देखो मेडिटेरेनियन सी जो है, इट इज सेपरेटिंग यूरोप एंड अफ्रीका, राइट. इट सेपरेट्स, इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल सी दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका. मैं आपको मैप में भी दिखा दूं अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा. इट इज सेपरेटिंग यूरोप फ्रॉम अफ्रीका. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. जॉर्डन की अगर बात करें, जॉर्डन इज नॉट ओपनिंग आउट टू द मेडिटेरियन सी. इट इज बाउंडेड बाय सीरिया. जॉर्डन तो सीरिया से बाउंडेड है, तो इट इज नॉट गोइंग टू गेट ओपनड अप टू द मेडिटेरेनियन सी. ठीक है. हियर वी हैव जॉर्डन. यहाँ पर हमारा सीरिया हो जाता है, यहाँ इजराइल हो जाता है, तो जॉर्डन यहाँ रह गया. इट इज नॉट ओपनिंग इन टू द मेडिटेरेनियन सी. हेंस द ऑप्शन वॉज जॉर्डन. ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. Now coming on to the next important question. Now this is the question based on the latest pattern. ठीक है. तो ये अगेन जरूरी हो जाता है. लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे ये क्वेश्चन बना है. कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बल्गेरिया, जेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुएनिया एंड रोमानिया. हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन? यहाँ देखोगे यूक्रेन एंड रशिया हैव बीन इन न्यूज. Why? Because of the war which was going on or which is still going on, right? तो इसीलिए the countries which are in and around Ukraine and Russia, the seas, the coastal regions, we have to prepare them. ये एक आपका तरीका है समझने का कि आपको मैपिंग पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है. जो भी न्यूज में है नेशनली इंटरनेशनली जगह, यू हैव टू प्रिपेयर इट. सो लेट अस, आई एम गोइंग टू गिव यू 1 minute का टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज ये लेटेस्ट क्वेश्चन है. तो मैं आपको 1 minute का टाइम दे रही हूँ. ठीक है. जल्दी से बताओ आंसर. 30 seconds आर लेफ्ट. ऑल राइट. देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, इट वुड बी ओनली 2.
ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। वाई? बिकॉज हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, दे आर टुवर्ड्स द वेस्ट यूक्रेन के। बेलारस है, रशिया है, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, मोल्दोवा, रोमानिया। सो ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अब आपने ये समझ लिया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी इज आस्किंग। यूपीएससी इज पिकिंग अप टॉपिक्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स and UPSC is forming static questions over them. यहाँ से here in these questions nowhere UPSC asked about the ongoing conflict between countries etc. It is simply picking up topics in news whenever, if you know, if there are revolts going on, wars going on, they have picked up the name of the nations, or if there is a volcano which has erupted, they will pick up the volcano and they will ask the location or nearby regions around it. तो आपको आपके यहाँ पर आंख और कान खुले रखने हैं थोड़े से whenever you are studying the newspaper. When you are aware, then you can easily grab 20 to 25 marks without any tension. सोचो जब 20-25 नंबर easily मिल जाएं, कोई टेंशन ही नहीं है। ज्योग्राफी में 90% तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर तो आप बल्ले बल्ले हो गई। इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी आपके हाथों में आ गया, 20-25 नंबर आप ही के हाथों में है, राइट? तो इसीलिए अभी जो भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, मेक श्योर कि आप अपने रजिस्टर में नोट्स बनाते जाओ। आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्लैक सी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसके ऊपर ना क्वेश्चंस काफी पूछे हैं यूपीएससी ने पास्ट में। लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑलरेडी। What exactly or where is, first of all let us understand first thing that what is the significance of Black Sea. Okay, देखो Black Sea is linked to different kind of water bodies, जैसे कि बॉस्फोरस स्ट्रेट हो गया, ठीक है, सी ऑफ मरमरा हो गया, यहाँ पर आप देखोगे एजन सी हो गया, ये सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ अजोब, इट इज लिंक्ड टू all these water bodies, right, all these straits. So that is why it is important. Now what is the speciality? It has a depth of over 150 meters and the water is filled with hydrogen sulfide. Write it down, hydrogen sulfide. For almost 2 kilometers the water is made up of hydrogen sulfide. तो ये आप देखोगे कि 2 किलोमीटर तक इसके डेप्थ में, ब्लैक सी के डेप्थ में कोई लिविंग थिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर द सल्फर बैक्टीरिया. ओनली सल्फर बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट. Okay, so this is again a very important and interesting information that I am sharing with you. Now when we talk about Black Sea, another important point ki why this region is famous, because this particular region is surrounded by rocky mountains. Okay, तो यहाँ पर आप टी प्लांटेशन देखोगे, हेजल नट्स, टोबैको, कॉर्न्स, दे आर ग्रोन इन दिस रीजन. दैट इज वाई इट इज रियली फेमस. And another important point about Black Sea is why it is known as black. काली है क्या ये? Is it black in color? The name Black Sea has been, given it to it by the Anatolian Turks. Why? Because वो क्या करते थे, साउथ की रीजन को व्हाइट बोलते थे, नॉर्थ की रीजन को ब्लैक बोला करते थे. द टर्क्स यूज टू कॉल साउथ रीजन एज white and north region as black, and because Black Sea is in the north region, that is why it is known as Black Sea. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको. कोई काला कलर नहीं है इसका, बट बिकॉज टर्किश लोग अपने डायरेक्शंस को नेम दिया करते थे, दैट इज वाई इट वॉज नेम्ड एज ब्लैक सी. तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ना रफ मैप भी बनाया आपके लिए, सो दैट यू कैन ड्रॉ दिस इन योर ओन रजिस्टर एज वेल. वी ऑल नो इट इज द लार्ज इनलैंड सी. वी ऑल्सो नो दैट साउथ ईस्टर्न यूरोप के अगर आप देखो, बिल्कुल साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी में ये एग्जिस्ट करती है. बॉर्डरिंग नेशंस भी हमने देख लिया. इन दी नॉर्थ वी हैव यूक्रेन, नॉर्थ ईस्ट में वी विल हैव रशिया. ये देखो नॉर्थ ईस्ट में रशिया है. देन जॉर्जिया वुड बी इन ईस्ट. टर्की बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में आ जाएगा. बल्गेरिया इज इन दी वेस्ट. रोमानिया इज इन दी वेस्ट. कहाँ पर होगा ये? वेस्ट. यस, वेरी गुड, ये भी वेस्ट में ही माना जाएगा. ठीक है, इसको आप नॉर्थ वेस्ट मत करना क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं. स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज, दैट इज व्हाई आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट दिस फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, इट वुड बी पार्ट ऑफ वेस्ट. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. मैं क्या करती हूँ, माई हैबिट इज ऑलवेज आई क्रिएट दिस डायरेक्शन का सिंबल, so that when mapping based question comes in UPSC prelims examination, this visual will be very straight away registered in my head. Okay, so do this. आगे बढ़ते हैं. ब्लैक सी के पास आप देखोगे ऊपर की तरफ वी हैव सी ऑफ अजोव एंड डाउन सी ऑफ मरमरा के थ्रू वी कैन गेट टू द एजियन सी. ऑलराइट, सो लेट अस स्टडी अबाउट नाउ द कैस्पियन सी. अब कैस्पियन सी पे आ जाते हैं.
a very important sea, although Caspian Sea news में भी काफी रहती है, and it is UPSC's favorite also. A lot of times UPSC has asked question repeatedly on Caspian Sea. हर साल आप एक question तो देख ही लोगे. Now Caspian Sea is known as endorheic basin. Why it has endorheic basin? Because कोई natural outlet ही नहीं है जहाँ से पानी बाहर निकल सके. फंस गया है. From all sides it is filled, it is bordered with land. There is no natural outlet from where water can go out. So that is why it is known as having an endorheic basin. इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है वोल्गा रिवर, एंड वोल्गा रिवर के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है. तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. Why have I highlighted this? A lot of times questions on Volga River has been asked. It is world's largest lake, या फिर आप बोल सकते हो कोई फुल फ्लेजेड सी भी कहा जाता है. ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ वोल्गा रिवर देखो कहाँ से, रशिया में आ रही है, ठीक है, और कैस्पियन सी में मिल रही है. तो ये रही वोल्गा रिवर आपकी. इट इज सराउंडेड बाय, it is bordered by, over here you can see Russia northwest, then we have Azerbaijan west, then we have Iran is towards the south, Turkmenistan is southeast, and Kazakhstan आ जाता है नॉर्थ ईस्ट. उज्बेकिस्तान नहीं है, ठीक है, काजाकिस्तान है. तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा. तो ऑलवेज रिमेंबर टू हैव योर मैप्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्टडी टेबल सो दैट यू कैन रिवाइज एवरी डे. सुबह उठकर यही चीज पहले रिवाइज कर लिया करो, ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड. बट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आई वॉन्टेड टू हाईलाइट दैट पॉइंट, दैट कैस्पियन सी इट इज नोन एज अर्थ्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर इफ वी कंपेयर इट थ्रू टू द सरफेस एरिया. अगर सरफेस एरिया के पैरामीटर से देखें तो ये सबसे बड़ी इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है. वाई इनलैंड? बिकॉज इट इज कवर्ड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स. दैट इज वाई इट इज नोन एज इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द सी ऑफ अजोव. ठीक है, अब ये सी ऑफ अजोव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पर हमने ये सब सीज पढ़ रहे हैं ना. ये देखो टॉप में ब्लैक सी में था हमारा सी ऑफ अजोव. दिस इज द कर्च स्ट्रेट. व्हाट इज अ स्ट्रेट? नैरो लाइन, विच बेसिकली इज अ ट्रांजिशनल लाइन बिटवीन एन ओशन और एक छोटा सा सी जो होता है उसके बीच की ट्रांजिशनल लाइन होती है. तो ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू सी ऑफ अजोव थ्रू द स्ट्रेट ऑफ कर्च. ये आपको पॉइंट याद रखना है. देखो दिस इज ब्लैक सी एंड आई शोड यू ना दिस इज स्ट्रेट ऑफ कर्च. तो ये हो गया आपका स्ट्रेट ऑफ कर्च. सो बेसिकली सी ऑफ अजोव की जो सैलिनिटी है वो बहुत कम होती है. इट हैज लो सैलिनिटी. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Another important fact about it is that it is the shallowest sea in the world. ठीक है, सी ऑफ अजोव. तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कैस्पियन सी एंड सी ऑफ अजोव. लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी कैस्पियन सी इफ वी मेजर इट बाय सरफेस एरिया, एंड सी ऑफ अजोव इज शैलोएस्ट सी इन द वर्ल्ड. इट इज बाउंडेड बाय रशिया. यहाँ देखोगे आप रशिया है साउथ ईस्ट में. देन वी हैव यूक्रेन ऑन दी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट सॉरी. ठीक है, तो इट इज बेसिकली कनेक्टेड टू ब्लैक सी through the Strait of Kerch, which is the nearby bay. It is the Arabetsike Bay. ओके, और कौन सा गल्फ है यहाँ पर? टोंगैंगोंग गल्फ यहाँ पर पाया जाता है. कौन सी रिवर है यहाँ पर जो मेजर दिख रही है? ब्लैक सी के केस में, कैस्पियन सी के केस में वोल्गा रिवर दिख रही थी, यहाँ पर है क्यूबन रिवर. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग. नाउ लेट्स मूव अहेड. एड्रियाटिक सी, अब हमने देखा था ऑन एड्रियाटिक सी यूपीएससी हैज इवन आस्क्ड क्वेश्चंस, so this is again important. When we talk about Adriatic Sea, what exactly is this Adriatic Sea? Let us understand first. सबसे पहले इसके पोजीशन को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है. It is a you can say slight or short arm of Mediterranean Sea. ठीक है, and when we talk about the Adriatic Sea, it is between the इटालियन एंड बाल्कन पेनिनसुला, जैसे कि हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था अभी. एंड इट स्टार्ट फ्रॉम गल्फ ऑफ वेनिस, साउथ से स्टार्ट होती है, देन टू द स्ट्रेट ऑफ ऑन्टेरियो, फाइनली इट लिंक्स टू द आयोनियन सी. दिस आयोनियन सी वाज आल्सो ओनली वंस आस्क्ड बाय यूपीएससी इन प्रीलिम्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आयोनियन सी को जोड़ती है. ठीक है, बॉर्डरिंग नेशंस क्या हो जाएंगे? इटली तो होएगा ही होएगा, इटली इज शेयरिंग बॉर्डर. देन वी हैव क्रोएशिया, we have Slovenia, we have Bosnia and Herzegovina, we have Albania, और इसको याद करने का हमने निमोनिक भी याद कर रखा है. we have Montenegro. ठीक है, so it is really important, remember it. Now the most important sea and which is bordered by almost 22 countries, which is the Mediterranean Sea. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके आपको सारे बॉर्डर्स रटने की जरूरत नहीं है, आप अपना निमोनिक बना सकते हो. बट येस, अ लॉट ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड on Mediterranean Sea. That is why I am saying it is important. Now basically it is an intercontinental sea and it is bordered by Europe.
तो अगर आप देखोगे पूरा यूरोप, और देखो यहीं पर मेडिटेरेनियन सी में ही मैंने आपको बताया था ना, एड्रियाटिक सी इज एन आर्म ऑफ मेडिटेरेनियन सी, सी दैट इज वाई आई वाज सेइंग। एंड देखो ये आयोनियन सी हो गया, एजियन सी भी यहीं पाया जाता है, ठीक है। ब्लैक सी भी इसी के पास है, सी ऑफ अजोव, ये सब भाई बहन साथ साथ हैं। द गल्फ ऑफ लायन, लाइग्यूरियन सी इज ओवर हियर, गल्फ ऑफ सिद्रा इज ओवर हियर। तो आप यहाँ देखोगे सी ऑफ क्रेट इज ओवर हियर। इफ यू रिमेंबर दिस वन मैप, आपके 5-6 सीज या ओशंस तो यहीं प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मेडिटेरेनियन सी का मैप आपने अगर रखा हुआ है अपने रूम में तो उसको पढ़ना जरूरी है रोज, ठीक है। So when we talk about the Mediterranean Sea, it is an intercontinental sea bordered by continent of Europe and in the north, Asia यहाँ पर है ईस्ट में, and we have Africa in the south. एंड वेस्ट में आप देखोगे इट इज कनेक्टेड विद द एटलांटिक ओशन, ये देखो एटलांटिक ओशन है ना ये पूरा, इट इज कनेक्टेड टू द वेस्ट। एंड सी ऑफ ग्रिबाल्टर, दिस इज द सी ऑफ ग्रिबाल्टर, ठीक है। नैरो स्ट्रेट है, मतलब सी भी नहीं बोलेंगे, स्ट्रेट ऑफ ग्रिबाल्टर बोलेंगे। थ्रू स्ट्रेट ऑफ ग्रिबाल्टर इट इज कनेक्टिंग विद द एटलांटिक ओशन, दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बहुत सारे एंशंट सिविलाइजेशन लाइक एंशंट ग्रीस, रोमन एम्पायर, दे वर लोकेटेड नियर द शोर्स ऑफ Mediterranean Sea. So there are European countries like Spain, France, Italy, Malta, Monaco, Slovenia, Croatia, Bosnia, Albania, Greece, Montenegro, Herzegovina जो इसको बॉर्डर करते हैं। देन अगर आप अफ्रीकन साइड, एशियन साइड जाओगे तो वी हैव टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टीन, गाजा स्ट्रिप। देन उसके बाद अफ्रीकन साइड में वी हैव 5 नेशंस, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लिबिया एंड इजिप्ट, विच आर बॉर्डरिंग इट टुवर्ड्स दी साउथ साइड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना और याद रखना। यहाँ पर नाइल रिवर भी है जो मेजर रिवर है, अफ्रीकन रिवर है, विच इज कनेक्टिंग विद द मेडिटेरेनियन सी। ऑलराइट, नाउ कमिंग मूविंग फॉरवर्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने मेजर सीज एंड ओशंस तो पढ़े, बट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्केनोज ऑल्सो विच हैव बीन इन न्यूज। अब देखो जब भी वॉल्केनो की बात आती है, इफ अ वॉल्केनो इज इन न्यूज, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ वॉल्केनो इट इज। क्योंकि जब काइंड ऑफ वॉल्केनो की बात आएगी तो यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हियर द पोपोसार्टिपेटल वॉल्केनो इरप्टेड एंड इट इज मेक्सिकोज मोस्ट डेंजरस वॉल्केनो, इट इज वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज ऑल्सो। बट what kind of volcano it is? It is a stratovolcano. तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी द लोकेशन ऑफ दिस वॉल्केनो, द सेकंड क्वेश्चन वुड बी द काइंड ऑफ वॉल्केनो इट इज। उसी के ऊपर 3-4 क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। सो वन टॉपिक कैन लीड टू 8 मार्क्स। समझ रहे हो मेरी बात? ये है फायदा करंट और स्टैटिक को साथ में लेकर पढ़ने का। So here the Popocatépetl volcano का basically the name means smoking mountain. And why smoking mountain? Because ashes they come out when the volcano erupts, right? It has erupted 13 times in the past day, and it is located at eastern half of the Trans-Mexican volcanic belt. अब always remember whenever the active volcano is in news, Pacific Ring of Fire भी news में रहता है, because active volcanoes they are located on the Pacific Ring of Fire only. एक और एग्जाम्पल है दी नॉरकैंडम वॉल्केनो। नाउ दिस वॉल्केनो इज लोकेटेड इन द अंडमान सी, बट अगेन इट इज ऑन दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास जितने भी वॉल्केनो है, क्योंकि इंडोनेशिया के आसपास आप देखोगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आता है, राइट। बट दिस वॉल्केनो इज नॉट वेरी एक्टिव। वाई? बिकॉज इट इज बेसिकली ये जो वॉल्केनो है ना, ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था होलोसीन एरा के दौरान। ओके तो होलोसीन एरा के दौरान इरप्ट हुआ था, दैट मीन्स काफी टाइम पहले इरप्ट हुआ होगा। तो इट इज अ डॉर्मेंट वॉल्केनो, इट इज नॉट करंटली वेरी एक्टिव, बट इट इज कंसिडर्ड पोटेंशियली एक्टिव। तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, वी हैव द माउंट एटना। Mount Etna was very ferociously in news. Why? Because again it is one of the most active volcano, और active volcano ज्यादातर आप देखोगे स्ट्रैटो वॉल्केनोज की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉमन लिंक आपको बिठाना है वॉल्केनोज जब भी आप पढ़ रहे हो। अब माउंट एटना की हम बात करें तो इट इज अराउंड आयोनियन सी, मेडिटेरेनियन सी एंड थायरीनियन सी, एंड इट इज लोकेटेड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली। तभी मैंने यहाँ पर मैप भी ऐड किया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। Now, I say that it is a stratovolcano. That means it is composed of layers of lava, ash and rocks. That is why it is stratovolcano. Okay, ये एक कॉमन फीचर हो जाता है। एंड इट इज यूरोप्स वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है,
ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन. तो यहां पर हम देखेंगे इट इज माउंटेन मेरापी. माउंटेन मेरापी आप सबने न्यूज में जरूर देखा होगा, राइट? माउंट मेरापी और माउंटेन मेरापी, इट इज इन इंडोनेशिया, अगेन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास है. अगर ये क्वेश्चन आता भी है ना कि व्हाई इंडोनेशिया हैज सो मेनी एक्टिव वॉल्केनोज, व्हाई? बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भाई, इसीलिए, दैट इज द रीजन. It is in Indonesia and it is world's most active and most dangerous volcano also. कहते हैं कि इसके आसपास काफी किलोमीटर तक लोगों को खाली करने के लिए बोला जाता है जगह, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेडली एंड डेंजरस काइंड ऑफ वॉल्केनो. ओके, अगेन ये भी एक स्ट्रैटो वॉल्केनो है, तो आपको लिंक समझ आ रहा होगा अब स्ट्रैटो वॉल्केनो का आपके एक्टिव वॉल्केनो से, राइट? अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इंपॉर्टेंट लेक्स को पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी में भी रिपीटेडली पूछे गए हैं एंड न्यूज में भी रहते हैं हमेशा. यहां पर आप देखोगे वी हैव द फर्स्ट लेक विच इज द लेक मॉन्टबेल. लेक मॉन्टबेल कहां पर है? इट इज अ रेजर्वॉयर इन फ्रांस. ओके, एंड इट इज वेरी पॉपुलर लोकेशन. यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स, स्विमिंग काफी पॉपुलर है, काफी टूरिस्ट फ्रेंडली लोकेशन है. अनदर इंपॉर्टेंट लेक, अब देखो लेक हमेशा आपसे लोकेशन के बेसिस पे पूछी जाएगी, तो वेनेवर लेक है वहीं पर लोकेशन है. नाउ वी हैव लेक ताहो. लेक ताहो कहां पर है? लेक ताहो इज लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, कहां पर लोकेटेड है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है. इट इज इन द सेरा नेवादा माउंटेन्स. मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पर लिख देती हूँ सो दैट आप भी अपने नोट्स में इस चीज को ऐड कर सको. ठीक है, so please write it down that Lake Tahoe, it is the largest freshwater lake. ठीक है, कहां पर है ये? इट इज इन दी नेवादा माउंटेन्स. वेयर इज इट? नेवादा माउंटेन्स में है. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है. किसके बॉर्डर्स पे है? दी बॉर्डर ऑफ कैलिफोर्निया एंड नेवादा. ठीक है, ये पॉइंट भी याद आ गया सभी को. अब यहां पर आगे बढ़ेंगे. अगर न्यू दिल्ली से आपको बाय फ्लाइट जाना होगा ना, तो एक दिन और अराउंड 2 आवर्स एक्स्ट्रा लगेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए. ठीक है, नाउ लेक चैड की बात करते हैं. लेक चैड यूपीएससी में इट वाज आस्क्ड एंड इट इज इन अफ्रीका. ओके, देन नाउ द नेक्स्ट लेक इज विच वाज आस्क्ड इन यूपीएससी, इट विच इज द लेक टिटिकाका. इट इज इन साउथ अमेरिका. कहाँ पर है ये साउथ अमेरिका में हो जाएगा. ठीक है, अगेन ये इंपॉर्टेंट हो गया. एंडीज माउंटेन्स के पास है वैसे, बाय द वे. अगेन अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली देन इट विल टेक 1 day to 14 hours टू रीच दिस पर्टिकुलर लेक. ओके, देन वी हैव लेक सुपीरियर. ठीक है, लेक सुपीरियर कहाँ पर? अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है. इट इज इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में लेक सुपीरियर आ जाता है. और पैंगोंग लेक के बारे में तो सभी को पता है. हु कैन टेल मी पैंगोंग लेक कहाँ पर होगा? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में. पैंगोंग लेक विल बी सिचुएटेड वेयर? यस, एशिया का है पैंगोंग सो. ठीक है, एंडोरिक लेक है इन एशिया. दी एंडोरिक लेक ईस्टर्न लद्दाख के पास पाया जाता है, ये भी आपको पता है, राइट? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेक्स, ओशंस, वॉल्केनोज, माउंटेन्स, सीज जो आपको पढ़ने थे, जो न्यूज में भी रहे हैं काफी बार. द गल्फ्स, द स्ट्रेट्स दैट वी हैव स्टडीड, राइट? तो दिस वाज योर क्लास फॉर टुडे. अब आपको करना क्या है? There is a homework that has been given in the comment section and even in the description box below this video. What you have to do is you have to solve that homework and share your marks with me in the comment section. Once you do that, trust me, आपकी प्रिपरेशन 99% मैपिंग की तैयार हो जाएगी. ठीक है, तो ये करना ही करना है आपको. चलो, वी आर गोइंग टू रैप अप द सेशन. डू रिवाइज. रिवीजन के बिना क्लास को छोड़ के मत जाना. ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन.